टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मिदनापुर के खड़गपुर और पटाशपुर में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी को विध्वंसक पार्टी की संज्ञा देते हुए कहा कि पार्टी यदि फिर से चुनाव जीतकर आती है तो राज्य में फिर से द्वारे सरकार कार्यक्रम जहां शुरू होगा वहीं महिलाओं को सरकार की तरफ से 500 रुपये प्रति महीने भी दिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने 1 लाख करोड़ के प्रतिवर्ष निवेश की भी बात कही। बीजेपी मतो पार्टी इलेक्शन আসলে বলবে হরি হরি আর পেছনে ডাকাতি করি। আমরা বলি হরি হরি হরে কৃষ্ণ হরি হরি আমরা তোমায় পূজা করি। আর এরা কি করে হরি হরি মুখে বলে হরি হরি আর পেছনে ডাকাতি করি। কপালে একটা তিলক কেটে মুখে পান বার চাবাতে চাবাতে লাল দিয়ে দুপাশ দিয়ে লাল পান বারের দাগ দেখা যাচ্ছে আর গিয়ে বলছে इसको मारेंगे उसको मारेंगे उसको मारेंगे যা ইচ্ছা করে যাচ্ছে। আমি বলি বাংলায় ওদের জায়গা নয়, বাংলা ওদের ঘর নয়। বাংলা বাংলায় থাকবে, এগরা এগরায় থাকবে, পটাশপুর পটাশপুরে থাকবে, দীঘা দীঘায় থাকবে, রামনগর রামনগরে থাকবে। আর যদি কেউ মনে করে কিছু গদ্দার নিয়ে এসে তারা মানুষের উপর অত্যাচার করবে, অনেক সহ্য করেছি, অনেক অন্ধ ভালোবাসা দিয়েছি, তার পরিণামে ওরা যে আমায় দিয়েছে জেনে রাখুন আমি 1 ইঞ্চি জমি ছাড়বো না বিনা যুদ্ধে। এটা আমাদের লড়াই। রেলে আপনাদের ছেলে মেয়েরা চাকরি করে, রেল বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, টোল বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, ব্যাংক বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে আপনারা গাড়ির জন্য ইন্স্যুরেন্স করেন, বাড়ির জন্য করেন, নিজেদের মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স করেন, কৃষক বন্ধুরা জমির জন্য করেন, যদিও কৃষকদের জমির টাকাটা পুরোপুরি আমরা দিই। এমনকি কোনো কৃষক মারা গেলে 18 বছর থেকে 60 বছরের মধ্যে 2 লক্ষ টাকা আমরা দিই। যারা পুরোহিত তাদেরও 1000 টাকা করে 1500 টাকা করে ভাতা আমরা দিই। আপনাদের সবাই পাবেন, चिंता करार कोनो कारण नहीं। और नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने जनसभा में टीएमसी पर जमकर हमला बोला और अब कहा कि अब की बार बीजेपी की सरकार होगी, ये बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। प्रधानमंत्री भारतीय भारतवर्षे ताके यदि मुख्यमंत्री बहिरागत बोले তাহলে নন্দীগ্রামের লোক তো ভুল বলেন, ঠিক বলছে। প্রধানমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে বহিরাগত হয় তাহলে নন্দীগ্রামের মানুষের কাছে মমতা ব্যানার্জি বহিরাগত। আর খুব বড় প্রার্থী নয়, সিপিএম নেত্রী মালানী ভট্টাচার্যের কাছে হেরেছিল, তাহলে উনি অপরাজয় নন। আবার হারবে এবারে, আপনারা হারাবেন। শুভেন্দু মানে তো আপনি, শুভেন্দু মানে তো আপনি, দায়িত্বটা আপনাদের। আরে সে ভাই কি বলবে, তুমি সব ভুল বলছে। ফুটবলে নাকি ওভার বাউন্ডারি হয়, ভুল ভাল যেমন মারা বলতো নারায়ণ দেব বিষ্ণু দেব, দেব না দেবী, লিঙ্গ পরিবর্তন করে দিতে ওটা বিষ্ণু মাতা। वही टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अभिषेक बनर्जी ने भी क्या कुछ कहा, दिखाते हैं हम आपको। কি হবে তো স্পষ্ট, এখন সিটটা 40-এ জিতবে না 50,000-এ জিতবে, ব্যবধানটা হচ্ছে প্রশ্ন। আমি অনুরোধ করব আপনাদের যে আপনারা যে ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতার ঋণে আজকে আমাদের আবদ্ধ করেছেন, যে আশীর্বাদ যে ভালোবাসা আমাদের আবদ্ধ করেছেন, আমি জঙ্গলমহলের মানুষকে নত মস্তকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রণাম অভিনন্দন এবং জোহার জানাচ্ছি। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दिलीप गिरी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। जी दिलीप, पे एक तरफ ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रचार व्हील चेयर पे ही संबोधन कर रही हैं और लगातार मेहनत कर रही हैं, बंगाल के अलग अलग इलाकों में उनका दौरा भी चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी तरफ से अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाल रखा है।
दिलीप, अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक बड़े चेहरे चुनाव मैदान में हैं, लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगता है टीएमसी की तरफ से इन्हीं दोनों ने मोर्चा संभाल रखा है। जी बिल्कुल उदय, आपने एकदम सही कहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अगर चुनाव प्रचार की कमान सीधे ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने हाथों में संभाल रखा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम बड़े नेता जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका लगातार बंगाल दौरा जारी है। जैसा कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरे पे थे। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से खड़गपुर में आ रहे हैं और वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद लगातार उनके कई कार्यक्रम है, यानी कुल मिलाकर के आप कहें कि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अगर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच चुनावी प्रचार के मुकाबला भी की बात करें तो इन दोनों ही खेमा में जहां भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम बड़े नेता हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी इस पूरे मोर्चा को संभाले हैं और लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और बार बार इस मुद्दे को बनाते हुए टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। और सिर्फ इसलिए कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में आ रहे हैं उनको एक तरह से कहीं ना कहीं बंगाल की जनता में जो बीजेपी एक पैठ बनाने की कोशिश कर रही है उस पर एक रोकने की कोशिश है और लगातार तृणमूल कांग्रेस इस पे प्रयासरत है। जी बिल्कुल, यानी देखा जाए तो कहीं न कहीं पूरे चुनाव को बाहरी भीतरी के मुद्दे पर फोकस करने का प्रयास चल रहा है। दिलीप, इतने दिनों में अगर देखा जाए तो मुद्दे कौन से उभर कर सामने आए हैं? लगता है कि अभी तक कोई ऐसा प्रभावी मुद्दा नहीं है जिस पर बंगाल चुनाव में आर पार का फैसला हो, लगता है इसलिए इसे एक मुद्दा बनाने का प्रयास टीएमसी की तरफ से हो रहा है। देखिए, अभी तक जो पूरा चुनावी कैंपेन है इसमें स्पष्ट तौर पे भावनात्मक मुद्दों को उभारने की कोशिश की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा सबसे अधिक उठाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीयता का भाव, हिंदू धर्म की बात, साथ ही बंगाल के महापुरुषों के सम्मान की बात को उठाया गया है, किसानों के सम्मान की बात को उठाया गया है, केंद्रीय सरकार की तमाम योजनाओं को आम लोगों से जोड़ने की बात कही गई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से खुद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो अन्य राज्यों में लागू किए गए हैं, सरकार आते ही उसे पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की जो तमाम लाभकारी योजनाएं हैं उसके एवज में जो पैसा बाकी है जो पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिला है राज्य सरकार के वजह से, उन सभी पैसों को सरकार आने के बाद सबको जोड़ करके एक साथ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस पूरे चुनाव के दौरान तमाम जो मुख्य मुद्दे थे उससे ध्यान भटके है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार तृणमूल कांग्रेस जहां स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठाते रही है, साथ ही खेला होवे का जो स्लोगन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दिया गया है उस पे प्रधानमंत्री ने कल कटाक्ष करते हुए कहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो खेला होवे नहीं होगा, रोजगार होगा, कारखाना होगा, शिक्षा के कार्य होंगे, अस्पताल के कार्य होंगे। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने, जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि हवा किसी भी तरह के हो, चुनावी माहौल किसी भी तरह के हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी सभा को संबोधित करते हैं या किसी रैली में शामिल होते हैं तो पूरे हवा को बदल देते हैं। शायद यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी 3 जनसभाओं को संबोधित किया और आज पहली बार ऐसा कहते हुए सुना गया कि उनकी सरकार बनेगी तो लोगों के लिए रोजगार सर्वाधिक मुहैया कराया जाएगा। जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला है या राज्य सरकार के जिन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उसे पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। यानी अब तक स्थानीय बनाम बाहरी, हिंदू बनाम मुस्लिम, इस तरह के जो चुनावी हथकंडे थे उससे बाहर निकल करके अब जो है राज्य में रोजगार, कल कारखाने सहित तमाम चिकित्सा संबंधित जो योजनाएं होनी चाहिए उस पर चर्चा शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं यह चुनाव के लिए एक बेहतर संकेत भी है कि जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़े तो आम लोगों के लाभ से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं अगर उस पर चर्चा हो और उस पर काम होते हैं तो कहीं ना कहीं यह राज्य के लोगों के लिए अच्छा और देश के लिए भी अच्छा है। जी बिल्कुल दिलीप, बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी के समर्थकों में काफी आक्रोश था। 2 उम्मीदवारों के नाम भी ऐसे आ गए थे जिन्होंने बाद में खुद स्पष्टीकरण दिया कि वो उम्मीदवार नहीं बनना चाहते हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो इन सब को लेकर क्या कुछ आज दिन भर दिखा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों
को लेकर के एक असमंजस की स्थिति कई विधानसभा सीटों पे है। लगभग 1 दर्जन ऐसे विधानसभा सीट है जहां पे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने के बाद वहां जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और स्थानीय कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन चला। जिलों के कई कार्यालयों में तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई है। कई जगहों पे जिलों में रखे गए फर्नीचर में आग भी लगा दिए गए हैं। तो असंतोष आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से करते आए हुए लोग हैं, जो लोग दूसरे दल से आए हैं उनको टिकट मिलने या फिर कहीं बाहर से जो उम्मीदवार हैं उनको किसी लोकल स्थान पर उतारा गया है, तो वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए वही नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार किया करते थे या उन्हें गलत मामले में पुलिस द्वारा केस दर्ज करा करके परेशान किया जाता था। तो वे वैसे नेताओं को अपना उम्मीदवार और नेता मानने के लिए राजी नहीं है। आज राज्य सरकार राज्य के कई नेताओं की तरफ से इसे समझाने की कोशिश की गई और इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश किया गया, लेकिन फिलहाल ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस मामले पे कहा कि पार्टी व्यक्ति विशेष यह पार्टी नहीं है जिसे सिंबल देगी, कार्यकर्ता और समर्थक उसका समर्थन करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी भी कई ऐसे सीट है जहां पे इस तरह की स्थिति अटकी हुई है। दूसरी तरफ कोलकाता के 2 महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, एक काशीपुर बेलगछिया और एक चौरंगी विधानसभा, इन दोनों ही सीटों पे 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। एक चौरंगी विधानसभा सीट पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा का नाम अनाउंसमेंट किया गया था। नाम अनाउंसमेंट करने के साथ उन्होंने कहा कि वो अभी भी कांग्रेस के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ रहे, उनका उससे कोई संबंध नहीं है। दूसरा काशीपुर बेलगछिया विधानसभा सीट से जो विधायक हैं टीएमसी के माला शाह, उनके पति का नाम अनाउंसमेंट किया गया, उसको लेकर के भी कंट्रोवर्शियल हुआ और उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके कहा कि वह किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, वह अभी भी तृणमूल कांग्रेस के साथ है। लेकिन इस पूरे मामले का निपटारा क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है, ना ही किसी नए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। तो देखना यह होगा कि सबसे महत्वपूर्ण इन 2 सीटों पे पार्टी का क्या निर्णय होता है और नए उम्मीदवार कौन आते हैं। तो एक नए तरीके का मैसेज होगा और कार्यकर्ताओं के अंदर जो आक्रोश है कहीं ना कहीं उस पर काबू करने में पार्टी सफल होगी। इसे भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन कहीं न कहीं चुनाव समिति पर सवाल जरूर उठ रहे हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर। वहीं दिलीप, बीजेपी ने कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों को भी उतारने की तैयारी की है। जी बिल्कुल, यह सत्य है कि पहली बार आप देखें कि पिछले 2 विधानसभा हुए थे, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों बड़े राज्यों में चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी एक भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी थी। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दी गई है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में विधानसभा की चुनाव लड़ रही हो, अकेले, किसी गठबंधन में नहीं, अकेले लड़ रही हो और लगभग 9 उम्मीदवारों को टिकट दिए, तो एक बड़ी खबर है। हालांकि इस पर मीडिया का कोई फोकस नहीं रहा है। हमारी चैनल ने इस खबर को ब्रेक किया है जब हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 मुस्लिम उम्मीदवारों की सूची बनाई है और उनको टिकट दिया है। तो यह एक नया संकेत है, यानी आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता लगभग 30% उनके साथ एक जुड़ाव हो और उनको अपने कनेक्शन में लिया जा सके। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना सिंबल दिया है। जी चलिए दिलीप, आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि रणनीति क्या कुछ सामने आती है और बीजेपी की चुनाव समिति भी इन उम्मीदवारों पर क्या कुछ फैसला करती है। दिलीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।